Welcome and good afternoon to everyone. Thank you for joining us for today's webinar. Myself, Gaurav Bandania, lecturer in Mechanical Department from PIT Diploma Studies at Parul University. Parul University is the leading provider of innovative graduates. Today, we are presenting a webinar titled as Basics of Metrology, which is presented by Mr. Girish Mewada, the CEO of GM Coaching Solutions and GM Business Solutions at Baroda. If you have any queries, any question, kindly note down my number 9974239464, and after completion of the session, you will contact to me for further query. Now, Mr. Girish Mewada sir has a huge experience regarding metrology and instrumentation. Now, without the waste of the time, I invite to Mr. Girish Mewada sir with great knowledge and expertise on the subject. Please, sir. Girish sir. All right, chalo. Very good afternoon. I think it is afternoon now, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So thank you for having me. It is Okay, my sir. pleasure and privilege to give this webinar, and I'm always thankful to Parul University for organizing such a webinar because it is going to help the student, right? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Because very few universities are doing this initiative. They are calling experts, and they keep in this kind of interactive section because as an engineer, I did my engineering in 1995 from LE College Morbi, and after my graduation, when I went for my first job, like my job was a different ball game. So then I realized that what I studied in my college and what I am supposed to do in practical field in the job, it is a totally different thing. So even today, when I recruit any engineer, a fresh engineer, it is very difficult to train him because he lacks some basic information about the engineering. So I'll speak a little bit Hindi, English in between, so everyone can understand this particular seminar. But the thing is that really the university like Parul is taking this kind of initiative by which the gap between the industry and the academia is reduced. Right, it is drastically reduced because this is not my first webinar with Parul University. I've been doing a lot of webinars with Parul University Yes, sir. in the different university with the different university also because as a person, my goal is to give my knowledge to the upcoming engineers, and that will help our country, right? Ultimately. So, being a CEO of the company, I'm a CEO of the GM Business Solution. I have a very tight schedule, but whenever someone asks me to give the knowledge to the upcoming student, I'm always I always keep my time for the students, right? So Yeah, thank you. Thank you so much, sir. yeah, so this is what I wish that I can contribute to the growth of the country, right? And India needs some good engineers, right? Yes, Our sir. country needs some good engineers. Even the entire world needs good engineers, to be very frank and very honest. So we engineers can change the world, right? Even doctors needs us. Everyone needs us, right? So if we produce the good quality engineers, the world will be better. So this is what that education is all about, right? What I have learned and I'm going to teach you. But the what I learn and what we'll understand, it is that is your basic knowledge about the engineering. So I'll talk some simple things today, but that is definitely going to help you because if you do not understand simple things, then the difficult things will be very difficult. Right? 5 plus 5 is equal to 10. That we all know, but if you don't know what is 5, then it is a problem. Right? So first we have to understand what is 5. Sir, kindly start your camera. Okay, just a minute. Okay, sir. All right. Yes, sir. Okay, fine. So this is my screen is okay. Yes, sir. Visible. It's All visible. right. My camera is also okay, right? Now. Yes, sir. Yes, sir. All right. So fine, nice. So
that is what we have supposed to learn as an engineer. Like basics we are going to discuss because हम लोग अभी डिप्लोमा के स्टूडेंट है, राइट, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं मेरे लैब में। जितने भी स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैं उनको एक स्केल देता हूँ, सिंपल स्केल, मेजरमेंट का स्केल देता हूँ, और उनको बताता हूँ कि भाई आप मेरे को 1 mm बताइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल्स एंड दैट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, बिकॉज हम लोग को थोड़ा बेसिक नहीं पता होता है। 1 mm क्या होता है, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 माइक्रोन क्या होता है, वो बहुत दूर की बात है। बट वी शुड बी एबल टू रीड द स्केल फर्स्ट, वी शुड एबल टू रीड एनी मेजरिंग स्केल, राइट। और उसके लिए हमको थोड़ा बहुत बेसिक अगर होगा तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। एंड सी आई डिड माई इंजीनियरिंग, और तब मेरे को नहीं पता था कि मैं ये फील्ड में आऊँगा मेजरमेंट, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप थर्मल साइड जा सकते हो, आप प्रोडक्शन साइड जा सकते हो, आप क्वालिटी में जा सकते हो, आप यूटिलिटी में जा सकते हो, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट। आप कैड में मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जा सकते हो प्योरली, राइट। तो दैट इज योर डेस्टिनी एक्चुअली। आपका पहला जॉब कहाँ पे आता है और आप किस में काम करना शुरू करते हो। तब हमारे टाइम ऐसा था, बिकॉज हम लोग को कोई पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जैसे जॉब जाता था वैसे हम जाते थे, राइट। अभी आपके पास चॉइस है कि आपको क्या करना है, बट मेट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, राइट, क्योंकि सब कुछ मेजरमेंट से ही होता है। आप एक कार चलाओगे कुछ स्पीड पे, तो आपका स्पीड का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, राइट, कि कितनी स्पीड पे जा रहा है। आप जब एयर में टायर प्रेशर चेक करोगे तो कितना प्रेशर एयर का होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो आपकी कार का वेट कितना है, राइट, वो सब कुछ मेजरमेंट से चलता है। दुनिया में मेजरमेंट निकाल दो आप तो दुनिया विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। अभी कितना टाइम हुआ वो भी एक मेजरमेंट है, राइट, टाइम मेजरमेंट। सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन मेजरमेंट। सो इफ यू रिमूव मेजरमेंट फ्रॉम द लाइफ, हमारी जिंदगी में से हम मेजरमेंट निकाल देंगे तो मेजरमेंट के बिना दुनिया मुश्किल है अभी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके लिए कौन सी एक्यूरेसी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, वो हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज, राइट। मतलब ज्यादा तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है और इतने कम टाइम में इन डेप्थ जाना बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं आपको काफी सारा बेसिक बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा पता चले। एम आई ऑडिबल सर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine, sir. So metrology, as I rightly introduced by sir, मैं अभी चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ, राइट। और हमारा कंपनी है GM गेजिंग सॉल्यूशन जो बड़ौदा में है। और हम लोग वी स्टार्टेड एज ए सप्लायर, मतलब कि मैं सीधा एंटरप्रेन्योर नहीं बना हूँ, मेरे पापा भी नौकरी करते थे, मेरे खानदान में सभी लोग नौकरी करते हैं, मैं ही अकेला हूँ जो बिजनेस करता हूँ। सो इफ एनी इंजीनियर वांट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर, इट इज नॉट बैड, राइट। मतलब मैं जॉब सीकर नहीं हूँ, मैं जॉब गिवर हूँ। तो आप ज्यादा जॉब सीकर मत बनिए, आप खुद का भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ नॉलेज, राइट। सो मैंने 5-7 साल जॉब किया, फिर हमने कंपनी शुरू किया हमारा GM गेजिंग सॉल्यूशन। हम सप्लाई करते थे गेजिस, आप देख रहे हैं नीचे प्रेशर गेजिस हैं, ये सब वर्नियर, माइक्रोमीटर, सब डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस वी यूज्ड टू सप्लाई। एंड इवेंचुअली हमको कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया कि हमको कैलिब्रेशन भी करना चाहिए, तो हमने कैलिब्रेशन लेबोरेटरी शुरू किया हमारा। और हमारा कैलिब्रेशन लेबोरेटरी भी NABL एक्रीडेटेड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, राइट। सो NABL कैलिब्रेशन मतलब क्या, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। एक इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में काम करती है संस्था। और उसने हमको एक्रीडेट किया है एज पर द ISO IEC 17025 2017। उसके आधार पे हमारा लैब का एक कॉम्पिटेंस चेक हुआ है, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइड। एंड इन 2017 वी गॉट द एक्रीडिएशन। हमको उसमें भी 5 साल हो गए हैं। वी प्रोवाइड द कैलिब्रेशन सर्विसेज टू इन एंड अराउंड गुजरात के आसपास के स्टेट, और गुजरात में हम लोग कैलिब्रेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द मेट्रोलॉजी, राइट, मतलब इंस्ट्रूमेंट से लेके कैलिब्रेशन तक। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेट्रोलॉजी, मेजरमेंट के पैरामीटर कितने होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको लास्ट में हर एक इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर दिखाऊंगा एकदम वेरी क्लोजली, तो आपको पूरा पता चलेगा। आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट शायद नहीं देखे होंगे। आई विल शो सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यू विल गोइंग टू सी। जब आप जॉब पे जाएंगे तब आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, राइट। बेसिक इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे एंड फिर हम कंक्लूड करेंगे, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बिकॉज आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे तो भी मेजरमेंट आपको
देखना पड़ेगा, आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो भी आपको मेजरमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन में मेजरमेंट प्रॉपर करके क्वालिटी में देना पड़ता है। अगर आपको मेजरमेंट एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं पता है तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में रिजेक्ट हो जाएगा। सो आप इससे बच नहीं सकते। मतलब व्हेन यू बिकम एन इंजीनियर यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम मेजरमेंट। आप अपने आप को मेजरमेंट से हाइड नहीं कर सकते। यस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो बंदा काम करेगा उसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए, बट अगर आप परचेज में हैं तो भी आपको मेजरमेंट का पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू परचेज समथिंग आपके पास फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, राइट? और इफ यू वांट टू सेल तो भी आपको फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। सो नथिंग हैपेंस विदाउट नॉलेज, राइट? एक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो हम थोड़ा बेसिक का बात करेंगे आज। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएम गेजिंग सॉल्यूशन, मैंने बताया, राइट? 2013 में हमने लैब शुरू किया था। उससे पहले हमने 2009 में ये कंपनी शुरू किया था, दैट इज सप्लाइज। एंड हम लोग पिछले 5-7 साल से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इंडस्ट्री में, राइट? प्रोफेशनल ट्रेनिंग वी गिव टू इंडस्ट्री ऑल्सो, नॉट ओनली यू बट बड़ी बड़ी कंपनी भी हमसे ट्रेनिंग लेती है। सो ट्रेनिंग इज ऑल्सो अवर एक्टिविटी बाय विच वी हेल्प डिफरेंट इंजीनियर्स टू कम अप, राइट? तो हम आगे देखेंगे कि मतलब कि जब ये दुनिया बहुत सालों की बात करें, आदि मानव की तब बात करें, तो लोगों के पास मेजरमेंट के लिए कुछ नहीं था। मतलब एक सूरज निकलता था तो सूरज के हिसाब से लोग काम करते थे कि इतना एंगल पे सन है, अभी इतने एंगल पे जाएगा, फिर रात हो जाएगी। मतलब दे नो व्हाट इज मॉर्निंग, व्हाट इज आफ्टरनून एंड व्हाट इज इवनिंग एंड नाइट, राइट? दैट वाज द टाइम मेजरमेंट इफ आई कंसीडर दैट। सो नो डेवलपमेंट। बट थोड़ा सिविलाइजेशन शुरू हुआ, फिर मतलब पीपल्स बिकम सिविलाइज्ड एंड देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग, लाइक मतलब पीपल स्टार्टेड यू नो, मतलब उनके पास गाय होने लगी, भैंस होने लगी, और फिर उनके पास एक्सेस सब होने लगा। मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा दूध का, या आप मान लीजिए कि वीट या कोई भी ग्रेन का। देन वांटेड टू सेल दैट एक्चुअली, उनको आगे जाके सेल करना पड़ा। तो सेल करने के लिए दे वांटेड सम काइंड ऑफ मेजरमेंट कि मैं उसको कितना दे रहा हूँ, सामने वो मुझे कितना दे रहा है। एंड देन द मेजरमेंट स्टार्टेड एंड देन उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। आज हम लोग मेजरमेंट में हैं, हमको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू इन द मेजरमेंट, राइट? इंजीनियरिंग इज यू नो डायनेमिक, इट इज नॉट द स्टैटिक। लाइक कि आप कोई भी इंजीनियरिंग में होंगे, अभी सब लोग बोलते हैं आईटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एवरी टाइम, राइट? तो मेजरमेंट कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे पहुंच गया है, इट्स अ बिग हिस्ट्री। ओके, सो वी ऑल नो दिस मेजरमेंट, राइट? मतलब कि एक छोटा बच्चे को भी पता है कि एक ऐसा मेजरमेंट होता है। सब्जी वाले के पास हम देखते होंगे, राइट? कि वेट मेजरमेंट। अभी वेट मेजरमेंट एक डिपार्टमेंट है हमारे कंट्री में, राइट? और उसके हिसाब से वो वेट का स्टैंपिंग वैम्पिंग होता है, और हर एक बैलेंस को स्टैंपिंग किया जाता है, राइट? कि भाई वो प्रॉपर है कि नहीं है। सो उसका मेथोडोलॉजी शुरू हुआ, फिर उसका गाइडेंस शुरू हुआ, फिर स्टैंपिंग आया, फिर एक पूरा डिपार्टमेंट बना। और वेट मेजरमेंट एवरीबडी नोज, राइट? कि एक साइड पे नॉन वेट होता है, दूसरी साइड पे अननोन वेट होता है, राइट? सो नॉन वेट से अननोन वेट को कंपैरिजन किया जाता है। सो इफ इन अ बेसिक लाइन मैं आपको बताऊं तो मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन, राइट? एक नॉन आइटम है और एक दूसरा अननोन आइटम है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। 1 किलो का वजन मेरे पास है और मेरे को 1 किलो आलू किसी को देना है, तो सामने 1 किलो रखेंगे और बैलेंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा उधर भी 1 किलो इधर भी 1 किलो है, लाइक दैट। वी ऑल नो दिस इज सिंपल, राइट? एंड फिर बहुत ज्यादा डिराइव हुआ। मैं सभी इंजीनियर को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी ये सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। अगर आप नोट पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज राइट दिस, बिकॉज ये मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं, है ना? 7 बेसिक एसआई यूनिट्स, राइट? तो मास के लिए हम किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल। प्लीज रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर कैरियर। अपनी कैरियर के पूरे टाइम के लिए इस 7 एसआई यूनिट हमको याद रखना है, राइट? प्लीज राइट डाउन एंड बिफोर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू यू मेक श्योर कि आपको पता हो, राइट? और नॉट ओनली इंटरव्यू बट ये आपकी कैरियर में भी बहुत काम में आएंगे आपको यूनिट,
क्योंकि आपके जॉब में बार बार ये सब यूनिट का आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। और इस यूनिट से आगे ज्यादा डिराइव्ड यूनिट आते हैं, उसका हम बात करेंगे फिर आगे। बट बेसिक मेट्रिक सिस्टम का जो ये यूनिट्स है, दैट वी शुड नो, राइट। अभी दो टाइप के, एक मेटलर्जी होता है। मेटलर्जी एंड मेट्रोलॉजी में फर्क है। मेटलर्जी इज अ साइंस फॉर मेटल्स, राइट। वो मेटल के बारे में बात करते हैं, राइट। और मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी होता है, जिसमें डिफरेंट मेटल कंपोजिशन वो सब डिस्कस किया जाता है, राइट। और ये मेट्रोलॉजी है, इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट साइंस डील्स विद द मेजरमेंट, राइट। ये मेजरमेंट के साथ हम लोग डील करते हैं। एंड मेट्रोलॉजी इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड मे बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक एक्टिविटीज। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, राइट, जो हमने बात किया आपसे कि ये जो यूनिट्स का डेफिनेशन मेट्रोलॉजी क्रिएट करती है, राइट। रियलाइजेशन ऑफ दिस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन प्रैक्टिस, ये जो यूनिट्स है उसको एग्जैक्ट प्रैक्टिकल मेजरमेंट में कैसे यूज करेंगे, वो मेट्रोलॉजी का काम है। एंड एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ ट्रेसेबिलिटी लिंकिंग मेजरमेंट्स मेड इन प्रैक्टिस टू रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि कोई भी एक मेजरमेंट होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। मान लीजिए कि 1 मीटर का लेंथ है कोई, तो इंडिया में, मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दिल्ली में है। उसके पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बोलेंगे कि 1 मीटर, मतलब दैट इज अ नॉन वैल्यू 1 मीटर। तो अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसको कैलिब्रेट करवाना है कि ये इंस्ट्रूमेंट ओके है कि नहीं है, तो मेरे को वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ता है। आई हैव टू कंपेयर। सो व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन कोई एरर निकालने का काम नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा है कि कैलिब्रेशन मतलब एरर निकल जाता है। नो, कैलिब्रेशन इज नॉट एरर रिमूविंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ रिपेयरिंग प्रोसेस। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच, उससे क्या होता है कि एक जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हायर एक्यूरेट मास्टर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। आई रिपीट, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे हायर एक्यूरेट मास्टर से उसको कंपेयर किया जाता है। एंड दैट शुड बी एटलीस्ट वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द मास्टर एज फार एज एक्यूरेसी इज कंसर्न। तो ये 1 मीटर का लेंथ एनपीएल में पड़ा है, उसके लैब में पड़ा है, और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट भेजा लेंथ मेजरमेंट के लिए, तो उसके साथ उसका कंपैरिजन होता है और फिर रिपोर्ट बनता है कि आपका 1 मीटर में कितना एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, राइट। अभी क्या होता है कि एनपीएल एक है पूरे इंडिया में, और इंडिया में बहुत लोगों को मेजरमेंट करना पड़ता है। एवरी कंपनी नीड्स मेजरमेंट्स। एवरी कंपनी, आजकल हर एक छोटी सी जीआईडीसी कंपनी को भी कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है, राइट। और सभी लोग एनपीएल में जाएंगे तो फिर आपको 2 साल बाद इंस्ट्रूमेंट वापस मिलेगा, इतना लाइन लग जाएगा वहां पे। तो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, दे हैव क्रिएटेड अ लैब्स, राइट। और सपोज कि हमारा लैब है, तो हम किसी और लैब से कैलिब्रेशन करवाते हैं हमारे मास्टर का, वो उसके पास भी एक मास्टर होगा, वो किसी और लैब से कराता है, फिर उसके पास जो मास्टर होगा वो किसी और लैब से कराता है। अल्टीमेटली इट शुड गो टू द एनपीएल, उसको ट्रेसेबिलिटी हम बोलते हैं, राइट। सो व्हेनेवर आई गिव एनी माय मास्टर फॉर कैलिब्रेशन टू अदर लैब, उसका कहीं ना कहीं ट्रेसेबिलिटी एनपीएल के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और हम जिससे मेजर कर रहे हैं वो ओके है, वो मेरा मास्टर ओके है, तो मैं किसी का कैलिब्रेशन करूंगा तो मैं किसी का रिजल्ट प्रॉपर दूंगा। आई विल गिव द प्रॉपर रिजल्ट टू दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज मेजरमेंट? टू डिटरमाइन द डायमेंशन, क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ समथिंग। आई रिपीट, 3 टाइप के मेजरमेंट होते हैं। डायमेंशन मेजरमेंट होता है, दूसरा क्वांटिटी, मतलब कि आप केजी लीटर ले लो, कैपेसिटी वॉल्यूम, दैट इज द मेजरमेंट, राइट। अभी व्हाट इज मेजरमेंट? मैंने आपको आगे भी बताया कि द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज एसेंशियली एन एक्ट और रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज अननोन विद अ सिमिलर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज नोन। मतलब 1 केजी का वेट अपने पास है जो नॉन वैल्यू है, और हम जो सामने रखेंगे वो अननोन वैल्यू है, राइट। तो हम अननोन वैल्यू का मेजर करते हैं कंसिडरिंग द नॉन वैल्यू। द लेटर क्वांटिटी इज बीइंग कॉल्ड द स्टैंडर्ड। हम 1 केजी का जो वजन है उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, और उस साइड का जो वजन है आलू, उसको हम लोग मेजरमेंट बोलेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट, राइट। तो मेजर अननोन क्वांटिटी, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ये मतलब मेरे पास एक 1 केजी मतलब बहुत ज्यादा आलू है, मैंने कहीं पे रख दिया एक नॉन क्वांटिटी के पास, और हमको फिर पता चला कि इसका वैल्यू ये है। सो इट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड। मेजरमेंट इज ऑलवेज कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड, ओके।
तो बात करेंगे कि मेजरमेंट के पैरामीटर्स आपको इंजीनियरिंग में कौन से आएंगे, राइट। लेंथ, आपको बार बार लेंथ मेजर करना होगा, राइट। थोड़ा बात करेंगे लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब लीनियर मेजरमेंट है, राइट। डेप्थ भी ले लो, ऑल आर लीनियर मेजरमेंट्स, मतलब कि सिमिलर आप बता सकते हो। एक सीधा मतलब कि y डिग्री में मेजर करता है, एक x डिग्री में करता है, विड्थ इज अगेन x डिग्री, डेप्थ इज अगेन y डिग्री, बट ऑल इज लीनियर, लीनियर मेजरमेंट। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आया था स्केल। स्केल से लेंथ मेजरमेंट शुरू हुआ था, राइट। और स्केल में नॉन वैल्यू होता है कि 1 mm, 2 mm, फिर सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लाइक दैट। और फिर हमको जिसका भी मेजरमेंट स्केल से करना होता है वो क्या करेंगे, हम स्केल बाजू में रखेंगे और फिर वो अननोन वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो हमको अननोन वैल्यू का लेंथ पता चलता था। आई थिंक यू आर गेटिंग मी, राइट। मतलब आप थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो, कि मेरे को एक टेबल बनाना है मेरे घर के लिए जिसका 2 फुट का हमको विड्थ लेंथ चाहिए, तो मेरे पास 2 फुट का एक टैप होगा, सॉरी एक स्केल होगा, और मैं एक उससे मार्किंग करके उसको काट डालूंगा। सो आई हैव अ नॉन वैल्यू एंड विद दैट नॉन वैल्यू आई गेट द मेजरमेंट, दैट इज लेंथ। अभी क्या हुआ कि लेंथ का जो हम लोग करते हैं उससे स्केल से, तो काफी बार क्या कि बड़ा लेंथ मेजर करने का फिर प्रॉब्लम आया। देन पीपल इन्वेंटेड द मेजरिंग टैप। वो मिस्त्री के पास होता है टैप, राइट। वो 5 मीटर 50 मीटर तक हम कैलिब्रेट करते हैं हमारे लैब में, 50 मीटर तक हम सप्लाई करते हैं। 50 मीटर का मेजरिंग टेप होता है, 50 मीटर इज अ बिग डिस्टेंस, राइट। सो वो मतलब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा मेजरमेंट करने लगा, तो मतलब उसका रेंज बढ़ गया। बट फिर आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम आया कि ये जो स्केल है, स्केल मेजर करता है 1 mm, जिसको हम लिस्ट काउंट बोलेंगे, नहीं? अभी थोड़ा मैं इसके साथ टेक्निकल भी आपके पास जाऊंगा कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होता है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितना मिनिमम मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट, एलसी हम उसको बोलते हैं, राइट। तो जो स्केल था उसका लिस्ट काउंट था 1 mm। तो 1 mm के नीचे कुछ भी जाता था, मतलब कि कोई रीडिंग आया 5 से 6 mm के बीच में आया, राइट। तो स्केल यू आर नॉट श्योर विद द स्केल कि ये 5.5 होगा, 5.6 होगा, 5.7 होगा कि 5.4 होगा। आपको एक प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलता है, क्योंकि वो मिनिमम 5.4 मेजर करेगा, 5.5 मेजर करेगा, दोनों ही मेजर करेंगे, राइट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो देन पीपल इन्वेंटेड द वर्नियर कैलिपर, राइट। वर्नियर कैलिपर मैं आगे उसका फोटो दिखाऊंगा आपको। तो वर्नियर कैलिपर है जो वर्नियर स्केल, राइट। तो उसमें क्या होता है कि 1 mm जो होता है उसके भी 50 डिवीजन किए जाते हैं फिर, राइट। तो मैं सभी इंजीनियर को क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव्स द राइट आंसर 0.02 mm, दैट इज 20 माइक्रॉन्स, राइट। 20 माइक्रॉन तक मेजर करता है वर्नियर कैलिपर। क्यों? क्योंकि उसका 1 mm होता है, उसके नीचे एक वर्नियर स्केल होता है जिसके 50 डिवीजन होते हैं, राइट। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.02, उसका लिस्ट काउंट ऐसे हम निकालते हैं। अगर उसका उसमें 20 मतलब वो है वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, राइट, लाइक दैट। सो दिस इज द वे द वर्नियर वर्क्स। बट इन जनरल वर्नियर में 50 का ही आजकल डिवीजन आता है, राइट। कभी कभी 10 का भी डिवीजन होता है। तो 10, अगर एक वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होंगे तो उसका लिस्ट काउंट 0.1 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1000। अगर 50 है तो 0.02 हो जाएगा। तो हम एज इंजीनियर वी शुड नो टेक्निकली ये लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज वो 1 mm होता है एक डिवीजन उसका मेन स्केल पे, इसीलिए। ओके, तो ये 0.02 मतलब 20 माइक्रोन तक मेजर करने लगे हम लोग। फिर मशीनिंग चालू हुआ, राइट। लेथ मशीन शुरू हो गए, ऐसे कंपोनेंट आना शुरू हो गया जिसमें एक के अंदर दूसरे को फिट करना होता है, असेंबली आना शुरू हो गया, थोड़ा मेजरमेंट क्रिटिकल हो गया फिर, राइट। सो मतलब कि आपने 20 माइक्रोन बनाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बैरिंग जब बनता है तो बैरिंग बुश के अंदर बैठता है,
तो बेरिंग का डायमेंशन अलग गलत हो गया, और अगर बुश का डायमेंशन गलत हो गया तो बेरिंग को बुश में बैठेगी नहीं फिर, राइट. सो अगेन वी वांटेड अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, देन इन्वेंटेड द माइक्रोमीटर, राइट. माइक्रोमीटर एवरीवन नोस, द माइक्रोमीटर हैज अ बेटर लिस्ट काउंट, और जिसका लिस्ट काउंट अच्छा हो जाता है उसका एक्यूरेसी डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, राइट. सो एक्यूरेसी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द लिस्ट काउंट. तो माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट इज 0.01 10 माइक्रोन. वो 10 माइक्रोन मेजर कर सकता है माइक्रोमीटर लेंथ. कोई भी ओडी मेजर करो, आप कुछ भी मेजर करो, तो उसमें क्या होता है माइक्रोमीटर में कि जो मेन स्केल हो वो 0.5 हो जाता है. वर्नियर में मेन स्केल 1 mm होता है, मगर माइक्रोमीटर में 0.5 हो जाता है. और 0.5 डिवाइडेड बाई 50 डिवीजन होते हैं माइक्रोमीटर्स के उस माइक्रोमीटर स्क्रू पे. तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो हमको 0.01 का लिस्ट काउंट मिलता है. ऐसे भी मैकेनिकल माइक्रोमीटर अवेलेबल है जिसका लिस्ट काउंट 0.001 mm मतलब 1 माइक्रोन भी है. और डिजिटल माइक्रोमीटर आते हैं भी जिसका लिस्ट काउंट 0.001 माइक्रोन है, राइट. सो मोस्टली प्रोडक्शन लेवल पे 1 माइक्रोन वाले इंस्ट्रूमेंट से काम चल जाता है, राइट. बट व्हेन यू कम टू द लैब, आप अगर हमारे लैब में आएंगे तो हमारे पास 0.0001 मतलब 0.1 माइक्रोन के इंस्ट्रूमेंट है. बिकॉज इफ आई वांट टू कैलिब्रेट समथिंग आई नीड अ हायर एक्यूरेट मास्टर. सो आपको ये समझना है सबको, सभी अपने स्टूडेंट को कि 1 mm के अंदर 1000 माइक्रोन्स होते हैं. तो 1 माइक्रोन इज द 1000 पार्ट ऑफ mm. 1 mm का अगर 1000वां भाग निकालेंगे हम लोग तो उसको हम 1 माइक्रोन बोलेंगे, राइट. 1 इंच में 25.4 mm होता है. आई रिपीट, 1 इंच होता है उसमें 25.4 mm होता है, मिलीमीटर, राइट. एंड 1 इंच का अगर 1000 पार्ट निकालेंगे तो उसको हम थाउ बोलेंगे, थाउ. 1 mm का 1000 पार्ट इज माइक्रोन, 1 इंच का 1000 पार्ट इज थाउ, राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स इंच मेट्रोलॉजी आल्सो. काफी बार इंच में भी मेजरमेंट होता है, राइट. सो माइक्रोमीटर इज बीन यूज्ड फॉर द लेंथ, बेसिकली वर्नियर कैलिपर बीन यूज्ड फॉर लेंथ, विड्थ. हाइट के लिए हाइट गेज आता है, राइट, जो हाइट मेजर करता है. डेप्थ गेज आता है डेप्थ के लिए, मैं आपको आगे सब फोटो दिखाऊंगा. एंगल इज ए वेरी टिपिकल मेजरमेंट. एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है, राइट. डिग्री के नीचे मिनट होता है, राइट, एंड मिनट के नीचे सेकंड होता है. तो मिनिमम लिस्ट काउंट ओवर डिग्री इज सेकंड. 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, राइट. सो उसको हम बहुत नीचे जाएंगे एंगल को, फाइन एंगल देखने के लिए, तो एक सेकंड में भी रीडिंग हम लेते हैं यहाँ पे, राइट, एंगल का. सो इट इज नॉट ओनली डिग्री, उसके नीचे भी बहुत प्रिसाइज जाता है. जब हम प्रिसीजन मेजरमेंट की बात करेंगे तो माइक्रोन में जाता है और डिग्री सेकंड्स में जाता है, राइट. रेडियस, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, परपेंडिकुलरिटी. रेडियस गेज होते हैं मार्क फील्ड में, जिससे हम रेडियस मेजर कर सकते हैं. फ्लैटनेस, सरफेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं. स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं. परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, मैं सब आपको बताता हूँ. पिच कैसे होता है ये हम आगे बात करेंगे, राइट. रनआउट, डायमीटर, यू नो ऑल नो व्हाट इज डायमीटर, राइट, वेरी सिंपल. रनआउट में आपको आगे बात करूंगा. सरफेस रफनेस, ओवालिटी, टेपर, दिस आर द मेजरिंग पैरामीटर. आपको कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग निकालेंगे आपको ये सब देखने को मिलेंगे. वी शुड अंडरस्टैंड ये सब क्या है, राइट. व्हाट इज ओवालिटी, व्हाट इज टेपर, what is surface roughness, right, so on. So अभी हम लोग बार बार सुनते हैं एक्यूरेसी क्या है, right, what is accuracy. तो थोड़ा we should discuss about accuracy also. The degree of exactness which the measurement corresponds to the real dimension of the part, right. थोड़ा सिंपल भाषा में बात करें हम लोग तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू. इनको ट्रू वैल्यू पता है, उसका जितना हमको कोई क्लोज ले सकता है उतना उसका एक्यूरेसी ज्यादा है, राइट. तो और एक दूसरी भाषा में हम बात करें तो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, राइट. मतलब कि एक वर्नियर कैलिपर ले लिए जिसका 30 माइक्रोन का एरर ही खुद का है, तो 30 माइक्रोन तो हमको पकड़ के चलना पड़ेगा कि 30 माइक्रोन तो उसके मतलब कि मेजरमेंट में गलती हो सकती है, क्योंकि द इंस्ट्रूमेंट हैज एरर ऑफ 30 माइक्रोन्स व्हेन इट मेजर्स इटसेल्फ. अगर आपने एकदम प्रॉपर मेजरमेंट लिया है मगर 30 माइक्रोन का गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेज दैट माय एरर इज 30 माइक्रोन, राइट.
सो हमको ज्यादा और क्लोज जाना है तो हमको वो माइक्रोमीटर लेना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया 1 माइक्रोन का, तो आप ज्यादा क्लोज जा सकते हो रीडिंग के. सो द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, आई रिपीट, द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज द एक्यूरेसी. ओके, एंड एक्यूरेसी इज जनरली डिफाइंड बाय द एरर आल्सो. इसका एरर कितना है, राइट, उतना उसका एक्यूरेसी, जितना एरर कम होगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा है, जितना एरर ज्यादा है उतना उसका एक्यूरेसी कम है. ओके, लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट इज द लोएस्ट लिमिट of measuring instruments, of any measuring instruments. Example, vernier caliper has a list count of 0.01, right? That means it cannot measure anything which is of lesser length. मतलब जो list count है, that is a minimum measurement capacity of that particular instrument. Range of instrument. अभी देखिए कि आप एज ए इंजीनियर आपको कोई सिलेक्शन आएगा कि भाई आपको एक वर्नियर कैलिपर सिलेक्ट करना है या कोई पैरामीटर आपको मेजर करना है. आपको बोला गया कि भाई बनाओ, आप ये बॉटल बनाओ, राइट. इफ यू कैन सी दिस बॉटल, दिख रहा है बॉटल ये, कैन यू सी दिस सर, एम आई ऑडिबल? यस सर. हाँ, कैन यू सी दिस बॉटल? यस सर, यस सर. ओके, तो इसका मेरे को ये विड्थ मेजर करना है, राइट. ऐसा हमको प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई इसका विड्थ मेजर करो आप. तो पहले हमको जानना चाहिए कि उसका कंपोनेंट ड्राइंग लेंगे हम लोग इस बॉटल का. एक एग्जांपल लेते हैं बॉटल का, आपको समझ में आए इसलिए कि कंपोनेंट ड्राइंग लेंगे और उसमें देखेंगे उसका टॉलरेंस कितना है. अगर ये बोलते हैं कि ये 3 mm चलेगा, 3 mm इधर उधर हो गया तो चलेगा, तो हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं फिर, क्योंकि स्केल 1 mm तो मेजर कर ही सकता है, राइट. ये एज ए इंजीनियर वी शुड अंडरस्टैंड दिस बेसिकली, राइट. मगर ड्राइंग में ऐसा लिखा है कि ये बॉटल 20 माइक्रोन में बनना चाहिए, उसका टॉलरेंस 20 माइक्रोन है, उसके अंदर भी उसका साइज आना चाहिए. देन वी शुड बाय द वर्नियर कैलिपर, राइट. और अगर बोले कि ये 4-5 माइक्रोन के अंदर ही बनना चाहिए, देन वी शुड बाय द माइक्रोमीटर. और अगर उससे अच्छा है तो वी विल सजेस्ट अदर इंस्ट्रूमेंट, राइट, जो अभी आपके सिलेबस के बाहर है. वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दैट, राइट. मगर अप टू माइक्रोमीटर यस. अभी ये होगा कुछ 15-20 mm, 25 mm, 30 mm होगा, राइट, मान लीजिए. तो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये मेजर कर सके. तो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि किधर से कितना आप मेजर कर सकते हैं. 0 से 25 का जो माइक्रोमीटर आता है वो 0 से लेके 25 mm तक मेजर कर सकता है. अगर इसका तो ऑलरेडी 30 है तो फिर 25 से 50 का माइक्रोमीटर आता है, वो हम ले सकते हैं, राइट. वर्नियर कैलिपर 0 से 100 का आता है, राइट. वर्नियर कैलिपर 0 से 150 का आता है, 0 से 300 का आता है. आपका स्केल भी देखा होगा आपने, छोटा आता है, 1 फुट का आता है, 2 फुट का आता है, राइट. मतलब लाइक वाइज दैट. जैसे मेजरिंग टेप भी 3 मीटर का आता है, 5 मीटर का आता है, लाइक दैट. तो रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द मेजरिंग कैपेबिलिटी. उसका मेजरिंग कैपेबिलिटी कितना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसको हम रेंज बोलेंगे. वी शुड नो द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो व्हेन वी वांट टू यूज द इंस्ट्रूमेंट. फिर हम रिपीटेबिलिटी बोलेंगे. रिपीटेबिलिटी से पता चलता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है कि नहीं है, राइट. मतलब कि मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही जगह पे 5 बार रीडिंग लेता हूं. आई रिपीट, एक ही जगह पे एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही कंपोनेंट पे सेम आदमी के साथ मैं 5 बार रीडिंग लेता हूं और 5 रीडिंग में जो भी डिफरेंस आया, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी. और जो इंस्ट्रूमेंट का रिपीटेबिलिटी अच्छा होगा, मतलब वो हर बार वही रीडिंग रिपीट करेगा, तो जो रीडिंग लेता है वो आदमी और इंस्ट्रूमेंट दोनों प्रॉपर है. काफी बार इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ होता है, काफी बार आदमी भी गड़बड़ होता है, राइट. तो रिपीटेबिलिटी डिपेंड्स, right, on the person who is measuring and on the instrument. दोनों का मिला के रिपीटेबिलिटी आता है, राइट. प्रिसीजन, द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट टू बी कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूस्ड. मतलब रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूस मतलब प्रिसीजन मतलब कि वो एरर दिखाता है, वहीं पे एरर बार बार दिखाता है. कोई एरर है कोई कंपोनेंट में तो बार बार दिखाता है, मतलब रिप्रोड्यूस बराबर करता है. दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. ओके. Reliability, the consistency of accurate results over consecutive measurement over time from the equipment. मतलब बार बार सही रीडिंग रिपीट करता है, then the instrument is reliable, right. So we should go for the reliable instrument. We should not go for the non-reliable instrument. मतलब एक बार वो 10 mm दिखा है, दूसरी बार 10.5 दिखाता है, फिर 9.5 दिखाता है. No, then there should be a problem with the person who is measuring or with the instrument. Okay, and traceability, the ongoing validation that the measurement corresponds to the real dimension of the part. मैंने आगे ही बताया
कि हम जो माइक्रोमीटर से मेजरमेंट लेते हैं वो माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोमीटर में एरर है तो हमको कैसे पता चलेगा, राइट? तो माइक्रोमीटर कैलिब्रेट करने के लिए स्लिप गेज होता है, आपने शायद स्लिप गेज देखा होगा, राइट? वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो स्लिप गेज हमारे पास 25, मान लीजिए कि 25 mm का स्लिप गेज है, और फिर वो माइक्रोमीटर पे स्लिप गेज रखेंगे, क्योंकि स्लिप गेज इज ए नॉन वैल्यू, राइट? हाई एक नॉन वैल्यू से माइक्रोमीटर को चेक करेंगे तो माइक्रोमीटर 25 दिखाना चाहिए। अगर माइक्रोमीटर 25 नहीं दिखा रहा है तो देयर इज एरर इन माइक्रोमीटर, नॉट इन द स्लिप गेज। स्लिप गेज एक मास्टर हो गया, माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया, राइट? तो स्लिप गेज से माइक्रोमीटर बराबर दिखाता है, देन माइक्रोमीटर का हम वैलिडेट करेंगे, माइक्रोमीटर इज ओके इंस्ट्रूमेंट। फिर वो जो स्लिप गेज से आपने कैलिब्रेट किया था, उस स्लिप गेज का भी कैलिब्रेशन होता है, क्योंकि अगर स्लिप गेज ही गलत है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन करने के लिए स्लिप गेज कैलिब्रेटर आता है, उससे उसका कैलिब्रेशन होता है। उस स्लिप गेज कैलिब्रेटर का भी कैलिब्रेशन होता है, राइट? सो पूरा आगे जाके चिक चेन बनता है जहां से हमको एक्यूरेसी मिलता रहता है। वो कहीं पे भी एक्यूरेसी में गड़बड़ है तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अ चेन ऑफ ट्रेसेबिलिटी। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट है, आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर, और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, हाउ इट वर्क्स, हाउ दे वर्क, राइट? स्केल, टैप, कैलिपर में 3 टाइप के आते हैं, वर्नियर, डायल, डिजिटल, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो, क्वालिटी डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, तो प्लीज understand these instruments because these are the basic instruments. Okay, depth micrometer, dial indicator में 2 टाइप के आते हैं, प्लंजर डायल आता है, लीवर डायल आता है, बोर गेज आता है, एक प्लेन प्लग गेज होते हैं, थ्रेड गेज होते हैं, मास्टर सेटिंग रिंग जिसको बोलते हैं MSR, दैट इज कॉल्ड मास्टर सेटिंग रिंग, MSD मतलब मास्टर सेटिंग डिस्क, एक सरफेस प्लेट होता है, रेडियस गेज होते हैं, एंगल गेज होते हैं, स्लिप गेज, पिच गेज एंड राइट एंगल। स्केल आप देख सकते हैं, राइट? ऊपर है स्केल, और ये जो नीचे मशीन है वो स्केल को कैलिब्रेशन करने का मशीन है, राइट? जो भी आप हमारे पास स्केल है उसका भी कैलिब्रेशन होता है। स्केल यहाँ से घिस गया है तो रीडिंग गलत दिखाएगा, राइट? यहाँ से अगर वेरिएंटर होता है स्केल का तो रीडिंग गलत हो जाएगा। स्केल अगर बेंड हो गया है इधर से बीच में से तो भी आपको गलत रीडिंग देगा। तो स्केल मेरा ओके है कि नहीं, उसका भी कैलिब्रेशन ये मशीन पे होता है, राइट? मशीन गिव्स द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द स्केल, राइट? टैप, एज यू नो, टैप में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये जो फिटिंग है ना टैप का, वो लूज हो जाता है बार बार, देन इट बिकम्स लूज, तो टैप पे एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। व्हेन यू बाय द न्यू टैप ये सब कुछ ठीक होता है, बट व्हेन यू यूज दिस टैप कंसिस्टेंटली, दिस पोर्ट, इफ आई एम, यू कैन सी हियर, यहाँ पे से हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस मिलता है, तो ये मशीन पे उसको यहाँ पे फिट करके उसका चेक किया जाता है। तो काफी बार टैप में बहुत सारी एरर होती है बिकॉज ऑफ दिस, राइट? एक मार्केट में पाई टैप आता है, आपने शायद नहीं देखा होगा, मगर पाई टैप जो होता है वो सीधा डायमीटर मेजर करके देता है आपको। तो बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं, राइट, उसको ये टैप हम लोग मतलब रिवाइंड करके उसको लगाते हैं और सीधा आपको ओडी मिल जाएगा, डायमीटर सीधा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें एक सरकमफरेंस स्केल होता है और डायरेक्ट ओडी का स्केल मतलब डायमीटर का स्केल होता है, सीधा डायमीटर मिलेगा आपको, राइट? तो आप सीधा कोई सर्कुलर जो बॉडी है उसका सीधा डायमीटर पाई टैप से निकाल सकते हो। पाई टैप्स आर वेरी मच यूज्ड इन जहाँ पे बिग कंपोनेंट होते हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे पाई टैप का यूज होता है, क्योंकि अगर आप इससे करोगे तो आपको सरकमफरेंस मिलेगा, आपको ओडी नहीं मिलेगा, इस पे डायरेक्ट ओडी मिलेगा आपको, राइट? वर्नियर कैलिपर, राइट? वर्नियर कैलिपर इज ए वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। इसको हम बोलेंगे सिंपल वर्नियर कैलिपर, इसको हम बोलेंगे डायल कैलिपर, और इसको हम बोलेंगे डिजिटल कैलिपर, राइट? ये जो पार्ट है जिससे हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इफ यू कैन सी हियर, ये जो पार्ट है इससे हम एक्सटर्नल मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये जो पार्ट है इससे भी हम इंटरनल कर सकते हैं। ये जो पार्ट है मतलब यहाँ पे इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डेप्थ, ऐसा जैसे ये डेप्थ रोड है, यहाँ से डेप्थ का भी मेजरमेंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर कैन मेजर द आईडी, ओडी एंड द डेप्थ, 3 मेजरमेंट कर सकते हैं हम इधर। इसको यहाँ पे रेस्ट करके, ये जो डेप्थ रोड है ना, डेप्थ रोड अंदर जाता है और डेप्थ रोड का मेजरमेंट होता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो डेप्थ रोड
का जो आगे का पोर्शन है वो थोड़ा कटा हुआ है, बिकॉज हम उसको पॉइंट कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं, और पॉइंट कॉन्टेक्ट देने से क्या होगा कि उसका वेर एंड टेयर कम होगा, राइट। और पॉइंट कॉन्टेक्ट से आपको थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो वेल इसका 0.02 डिस्काउंट होता है, इसका 0.02 होता है, इसका 0.01 10 माइक्रोन डिस्काउंट में काम करता है कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, राइट। और इसका भी कैलिब्रेशन होता है, राइट, विद कैलिपर चेकर। ओके, तो ये ओके है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कैलिपर चेकर होता है। माइक्रोमीटर, राइट, एज वी नो माइक्रोमीटर, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, वन इज डिजिटल, अदर इज द एनालॉग माइक्रोमीटर, सिंपल, राइट। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप देख सकते हैं तो ये 0 है और ये 1 है, इन बिटवीन 0.5 नीचे है। हम देखें वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, 0 1 2 सीधा होता है, मतलब उसमें एक डिवीजन होता है, 2 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, इधर 0 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे होता है। तो मतलब मेन स्केल का जो रीडिंग है उसमें 0.5 का होता है और वर्नियर में 1 का होता है। तो वर्नियर आप देखेंगे तो 1 मतलब कि उसमें 50 डिवाइडेड बाय 1000 होता है, क्योंकि ये 1 है, इसलिए उसका 0.20 आता है। इधर 0.5 डिवाइडेड बाय 50, इसमें 50 होता है, ये जो है ना स्केल, उस पर 50 डिवीजन होता है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 0.01 का लिस्ट काउंट हमको मिलता है इन केस ऑफ माइक्रोमीटर। स्लिप गेज है 15 mm का, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि 15 mm बराबर दिखाता है कि नहीं दिखाता है, बिकॉज ये उसको मास्टर बोलेंगे, जैसे मैंने आगे आपको बताया।